Good morning, student. We start with first problem under accounting for not-for-profit organization. I hope all the students are having a booklet. Just for that booklet or on your screen you can refer the first problem. I will read the problem and then we try to solve this. What they are given? Problem number 1. The following is the receipts and payment account of a club in respect of the year 2030. In respect of the year 31st March 2018. That means this receipts and payment is from 1st April 2017 to 31st March 2018. What they have further given? I told you that receipts and payment is nothing but cash book. So on the receipt side you have opening cash balance 2000. Then you have subscription of 2016-17. That means last year ka subscription amount, member subscription fees you have received during the current year, rupees 3000. Current year 17-18, 4000. Or this should be 18-19. Instead of 17-19 it should be 18-19. 18-19 is, this is 18-19, rupees 1000. Total subscription amount received is rupees 8000. Then you have profit on sports, rupees 3000. There may be certain sports activity from where they have made a profit of rupees 3000. 3000 rupees cash mein they might have earned. It may be either like they might have collected 10,000, made an expenses on sports 7,000, and net amount which is a profit which has been shown on the receipt side 3,000. Then they have received the interest on securities rupees 1,000. So these are the things given on the receipt side. Payment side you have salaries 3,000, stationery 1,000, rate and taxes 300, telephone charges rupees 1,500. 12% securities at par, that means they have purchased 12% security at par, that is face value, rupees 5,000. Miscellaneous or sundry expenses you have 200, and balance carried down is rupees 3,000. That is, this cash balance is on 1st April 2017 and this cash balance is 31st March 2018. Fine. तो सैलरीज 3000 रुपए दिए, स्टेशनरी का खर्चा हुआ है 1000, स्टेशनरी दे हैव परचेज 1000, रेट्स एंड टैक्सेस, certain taxes they have paid 300, telephone expenses is 1500, and securities they have purchased 5000, and miscellaneous or sundry expenses is 2000. What are the additional information they have given? The following additional facts are ascertained. There are 500 members, each paying an annual subscription of rupees 10. That means 500 members. हर एक member 10 रुपए subscription fee pay कर रहा है. तो total amount receivable from members will be rupees 5,000. Fine. Further what it says, 3,500 being in areas for 16-17 at the beginning of 2017-18. That means 16-17 में कुछ members ने subscription fee pay नहीं किया और 3,500 was receivable for 2016-17. Now, if you look at receipts and payment, you can see that के 2016-17 के 3,000 रुपए रिसीव हुए जो पिछले साल पेंडिंग थे. 3,500 was receivable in 2016-17. उसमें से
17-18 में पिछले साल के 3000 रिसीव हुए, जबकि रिसीव कितने होना चाहिए था 3500, लेकिन रिसीव कितने हुए ओनली 3000. दैट मीन्स दैट 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग. आगे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग 16-17 subscription were paid in advance by 30 members for 17-18. 30 मेंबर्स ऐसे थे जिसने 2016-17 में 17-18 का पेमेंट दे दिया था, यानी 2016-17 में 30 लोगों ने एडवांस में पेमेंट दिया था 2017-18 का. 30 मेंबर्स, 10 रुपीज सब्सक्रिप्शन फी, टोटल विल बी 30 into 10, 300 rupees. यानी 300 rupees were collected in 2016-17, but those amount belong to 2017-18. That is amount received in advance, income received in advance in the previous year. पिछले साल में 16-17 में 300 रुपए 17-18 के आपको मिले थे. Fine. All these we are going to refer in while solving the problem. Then stock of stationery at 31st March 17, that means previous year, was 400, and on 31st March 18 is 500. And a closing stock of stationery last year, at the end of the last year, was 400, and in the current year end it is 500. उसके बाद वो बोल रहा है 31st March 18 में rate of taxes were prepaid to the following 31st January. What is the rate and taxes they have given in the problem? Rate and taxes they have given rupees 300. और एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है, at 31st March 2018 the rate and taxes were prepaid to the following 31st January. The yearly charge being rupees 300. साल भर के चार्जेस कितने, 300 रुपए. रिसिप्शन पेमेंट भी 300 रुपीज बता रहा है, लेकिन इंफॉर्मेशन में क्या दे रहा है कि करंट ईयर के अंदर आपने 31 जनवरी 2019 तक आप ये बैलेंस शीट जो भी रिसिप्शन पेमेंट बैलेंस शीट जो भी दिया हुआ है वो 31 मार्च 18 का दिया है, और वो बोल रहा है आपने नेक्स्ट ईयर जनवरी तक रेट्स एंड टैक्सेस पे कर दिया है और ईयरली चार्जेस 300 है. 31 जनवरी 2019 तक वो बोल रहा है कि आपने रेट एंड टैक्सेस पे कर दिया है, यानी आपने 1 अप्रैल 2018 से 31 जनवरी 2019 तक आपने ये पेमेंट दे दिया है, और वो बोल रहा है साल भर का पेमेंट जो है वो 300 रुपए, यानी पर मंथ कितना हुआ 300 रुपीज डिवाइडेड बाय 12 months, पर मंथ विल बी 25 रुपीज, एंड यू हैव पेड अप टू 31 जनवरी 2019. दैट मीन्स दिस इज 10 months prepaid. 25 rupees per month into 10 month will be rupees 250 बराबर. तो आउट ऑफ ये जो रेट्स एंड टैक्सेस दिया हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के अंदर, तो 300 रुपीज दिया हुआ है. 300 रुपीज वो बोल रहा है कि आपने नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आपने पेमेंट एडवांस में दिया है. नेक्स्ट ईयर जनवरी एडवांस 10 months का होता है 250, तो 300 रुपीज में से 250 बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, दैट इज 18-19. तो बैलेंस अमाउंट कितना बचेगा, 300 माइनस 250 प्रीपेड विल बी बैलेंस 50 रुपीज. बट वन मोर सेंटेंस दे हैव गिवन दैट के ईयरली चार्जेस आर 300. इफ आउट ऑफ 300 यू सबट्रैक्ट 250 रुपीज which belongs to the next year, तो अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इट कम्स टू रुपीज 50 ओनली. मगर एक एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है कि साल भर का खर्चा जो है वो 300 रुपए है. तो इफ आई टेक दिस एज अ 300 रुपीज अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर,
और रेट्स एंड टैक्सेस। इसके लिए क्या बोल रहा है कि पेमेंट साइड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स में दे हैव गिवन ₹300 and what adjustment says that you have paid up to 31st January 2019, right? आपका बैलेंस शीट कब एंड हो रहा है 31 मार्च 18 और वो बोल रहा है आपने नेक्स्ट ईयर जनवरी तक पेमेंट दे दिया है, यानी यू हैव पेड फ्रॉम 1st April 18 to 31st January 19. That means it works out to 10 months. It says that yearly charges is 300. That means per month is ₹25. That means आपने ₹250 नेक्स्ट ईयर के अभी पे कर दिए। जो पेमेंट में ₹300 दिख रहा है उसमें से ₹250 बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स करंट ईयर का 2017-18 का अमाउंट कितना हो रहा है? ओनली 50। पेमेंट साइड में जो ₹300 दिए हुए उसमें से ₹250 आपके प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर के। तो इसका मीनिंग क्या है? 300 में से जो 250 जाने के बाद ₹50 बचे, इट बिलोंग्स टू 17-18। और व्हाट इट सेज कि ईयरली चार्जेस इज ₹300। तो इसका मीनिंग ये हुआ क्या कि अगर इसमें से ₹50 17-18 के हैं तो ₹250 क्या बकाया है, बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग है? नहीं, बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गिवन द इंफॉर्मेशन दैट कि आपने ₹250 एडवांस में पे किया है। तो इसका मीनिंग ये है कि एवरी ये जो आप पेमेंट दे रहे हो, अगर करंट ईयर के भी ₹300 है तो 250 कहां गए? इसका मीनिंग है 250 भी आपने लास्ट ईयर एडवांस में पे किया था। दैट मीन्स आप जो पेमेंट दे रहे हो वो 31st जनवरी टू 31st जनवरी रन हो रहा है। तो पिछले साल आपने 31st जनवरी 2017 से यू हैव पेड 31st जनवरी 2018 लास्ट ईयर। करंट ईयर के अंदर भी 31st जनवरी 18 से 31st जनवरी 19 तक आपने ये ₹300 पे कर दिए। इट मीन्स दैट कि करंट ईयर में जो ₹300 आपने पे किए उसी तरह आपने पिछले साल भी ₹300 पे किए होंगे। दिस इज फॉर 2017-18। उसी तरह 2016-17 में भी आपने ₹300 पे किए होंगे। वो ₹300 ये आपने जो पे किया है 31st जनवरी 2017, तो ये पेमेंट 1/4/17 से 31st जनवरी 18 तक आपने पे किया है। ये पिछले साल की बात करो, यानी पिछले साल भी आपने ₹300 पे किए, उसमें से आपने 250 17-18 के प्रीपेड पे किए होंगे। दिस इज ऑल्सो 10 months into 25, इट वर्क्स आउट टू 250। और पिछले साल ये ₹50 जो थे, दिस ₹50 was for 2016-17 और उसके 250 15-16 में, यानी इट इज अ चेन। दैट मीन्स अमाउंट इज पेड फ्रॉम जनवरी टू जनवरी। दैट्स द रीजन करंट ईयर के अंदर आपने जो ₹300 पे किए उसमें से 250 आपने नेक्स्ट ईयर के एडवांस में पे कर दिया। दैट इज द प्रीपेड एक्सपेंसेस, वी हैव टू सबट्रैक्ट दैट, बैलेंस इज 50। एडजस्टमेंट में क्या दिया हुआ है कि ईयरली चार्जेस ऑफ रेट एंड टैक्सेस इज 300, इट इज कमिंग ओनली 50। तो ₹250 फिर कहाँ गए? ₹250 आपने पिछले साल ये साल के पे किए थे। दैट मीन्स 16-17 में भी आपने 17-18 के ₹250 पे किए होंगे। तो ये ₹50 में that 250 which you have paid in the last year will be added and accordingly it will work out to ₹300. So this is an adjustment for rate and taxes. Then you have a
A quarter charge for telephone is outstanding. The amount accrued being rupees 300. The charge of each quarter is same for both 16-17 and 17-18. Now, what is an amount of telephone charges they have given in receipts and payment is 1500. 1500 रुपए उन्होंने टेलीफोन चार्जेस के आपको दिए. फाइन. टेलीफोन चार्जेस पेमेंट 2017-18 they have given rupees 1500. Now what it says, a quarter charge for telephone is outstanding, amount accrued being 300. एक क्वार्टर का पेमेंट देना बाकी है रुपीज 300. रिसिप्शन पेमेंट में आपने 1500 रुपए दिए और 300 रुपए वो बोल रहा है देना बाकी है. बराबर. तो क्या साल भर के चार्जेस 1800 रुपए है? नहीं. आगे क्या बोल रहा है? अ चार्ज फॉर ईच क्वार्टर इज सेम, यानी हर एक क्वार्टर का अमाउंट जो है वो सेम है और एक क्वार्टर के चार्जेस कितने हैं? रुपीज 300. बराबर. तो 300 रुपीज पर क्वार्टर. हाउ मेनी क्वार्टर्स यू हैव ड्यूरिंग द ईयर इज 4 क्वार्टर्स. 300 multiplied by 4 quarters, total amount of expenses will be rupees 1200. 300 के हिसाब से अगर लिया जाए पर क्वार्टर, you have 4 quarters, तो it works out to 1200. यानी साल भर के आपके टेलीफोन चार्जेस कितने आने चाहिए? 1200 रुपए. आपने 1500 रुपए पे किए. बराबर. 300 रुपए वो बोल रहा है आउटस्टैंडिंग है. 2017-18 का अमाउंट इज आउटस्टैंडिंग. फाइन. If 300 rupees is outstanding, it should be total amount of expenses should be 1800 for current year. But what it says, कि yearly expenses for telephone is only 1200 as per the information they have given. तो यहाँ तो total 1800 आ रहा है. तो इसका मीनिंग क्या है कि 600 रुपीज जो आपने एक्सेस पे किया, ये जो 600 रुपए आपने पे किया वो कौन से ईयर का है? करंट ईयर में अगर आप बोलते हो कि आपने प्रीपेड नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया तो ये हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंसेस जनरली यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 17-18 का आउटस्टैंडिंग है, यानी करंट ईयर का आपका 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग है. तो इफ करंट ईयर का 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग है तो हाउ यू कैन पे इन एडवांस फॉर 18-19 जब आपने करंट ईयर का 300 पे नहीं किया है? तो इसका मीनिंग क्या है कि 600 रुपए जो है वो पिछले साल के आपने करंट ईयर में पे किए, यानी लास्ट ईयर भी ये क्या था? आउटस्टैंडिंग. लास्ट ईयर 2 क्वार्टर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था. तो दिस 1600 बिलोंग्स टू 2016-17. गॉट इट? टेलीफोन चार्जेस 1500 रुपए आपने पे करे, 300 रुपए आपके करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग है, टोटल अमाउंट 1800. लेकिन वो बोल रहा है कि साल भर का एक्सपेंसेस 1200 ही है. तो 1800 रुपए जो एक्सेस हो रहे, 600 रुपए जो एक्सेस हो रहे, वो 600 रुपए बीच ईयर के इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर. 16-17 का अमाउंट आपने 18-19 में पे किया. दिस इज फॉर टेलीफोन. देन यू हैव sundry expenses accruing at 31st March 17 were 50 and 31st March 18 is 60. Sundry expenses as per receipts and payment is 200. Sundry expenses payment, how much they have given under payment? Rupees 200. What it says? Sundry expenses लास्ट ईयर के कितने आउटस्टैंडिंग थे? 50 रुपीज, यानी 200 रुपीज में से लास्ट ईयर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग 2016-17 का आपने अभी पे किया. हाउ मच? रुपीज 50. 200 रुपए में से 50 रुपए लास्ट ईयर के थे, 150. और वो बोल रहा है करंट ईयर में 60 रुपीज आउटस्टैंडिंग.
यानी करंट ईयर का टोटल कितना हो रहा है 210. दिस इज फॉर 2017-18. करंट ईयर का टोटल सैलरी एक्सपेंसेस कितना हो रहा है ₹210. Next is at 31st March 17, building stood at in the books 30,000 and it is required to write off depreciation at 10%. 31st March 17 यानी 2016-17 में बिल्डिंग का वैल्यू था 30,000. डेप्रिसिएशन आपको 10% चार्ज करना है. डेप्रिसिएशन 10% 30,000 पे will be 3,000. So balance value of building in the current year will be 30,000 minus 3,000, 27,000. Fine. उसके बाद you have face value of 12% securities at 31st March 17 was 10,000, which were purchased at that date for 15,000. 31st March 17 यानी last year आपने 10,000 रुपए का फेस वैल्यू वाला सिक्योरिटी यानी जिसका फेस वैल्यू एक्चुअल वैल्यू 10,000 था वो आपने 15,000 रुपए में मार्केट से परचेज किया था. तो लास्ट ईयर आपके पास सिक्योरिटीज 15,000 की थी. एडिशनल सिक्योरिटी वर्थ ₹5,000 were purchased at par on 31st March 18, जो आपके रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में भी दिख रहा है. देखिए 12% सिक्योरिटीज 5,000. पिछले साल सिक्योरिटीज 15,000 की थी. करंट ईयर में आपने 5,000 की सिक्योरिटीज लास्ट डेट पे परचेज की और उस सिक्योरिटीज पे आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 12%. इंटरेस्ट आपको कभी भी फेस वैल्यू पे मिलेगा ना कि मार्केट वैल्यू. तो 31st दिस इज इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. Interest on securities. Rate of interest is 12%. पिछले साल 31st March 17 आपके पास 15,000 रुपए की सिक्योरिटीज थी लेकिन जिसकी फेस वैल्यू कितनी थी 10,000. यानी 1 अप्रैल 2017 को आपके पास 15,000 रुपए की सिक्योरिटीज थी जिसका फेस वैल्यू 10,000 था. एट द एंड ऑफ द ईयर 31st March 18 आपने और 5,000 की सिक्योरिटीज परचेज की. ऐसा टोटल ये भी फेस वैल्यू पे परचेज की 5,000. टोटल हो गया आपका 20,000. नाउ यू आर रिसीविंग द इंटरेस्ट ऑफ 12%. 12% interest will always be received on the face value. यानी ये 10,000. ये 5,000 रुपए पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने उसको लास्ट डे पे परचेज किया है. वी आर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट फॉर द एंटायर ईयर. तो इंटरेस्ट विल बी फ्रॉम 1 अप्रैल 17 to 31st March 18 at the rate of 12% on this face value, that is 10,000, will be how much? 1,200. आपको 1,200 रुपए का इंटरेस्ट मिलना चाहिए. इस 5,000 पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वो लास्ट डे पे परचेज किया है. तो इंटरेस्ट आपको 1,200 रुपीज मिलना चाहिए. आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में देखिए इंटरेस्ट कितना है. आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट के हिसाब से इंटरेस्ट जो मिला है वो मिला है सिर्फ 1,000 रुपया. यानी इसका मीनिंग क्या है कि 200 रुपीज इज स्टिल रिसीवेबल ऑन सिक्योरिटीज. तो ये अमाउंट आपको स्टिल रिसीवेबल है. आगे क्या बोल रहा है? You are required to prepare an income and expenditure account for the year ended 31st March 18 and the balance sheet on the same date. Now the thing is, I told you that they should give you an opening capital. They have not given you the information about opening capital. तो opening capital आपको कहाँ से मिलेगा? From opening balance sheet. So that also you have to prepare. Fine. तो यहाँ पे ये 4 important adjustment मैंने आपको बताया है जो आपको नोट डाउन करना है.
one is rate and taxes, one is telephone charges, one is sundry expenses, and one is interest on securities. So these are the different adjustment. उसके अलावा subscription fees and stationery that we are going to refer as and when I am going to solve the problem. Just copy this. Fine, we'll start with the solution. Now they want us to prepare income and expenditure account and balance sheet, and working notes will have opening balance sheet. Right? We'll start with this income and expenditure account. This is similar to, I told you that this is similar to profit and loss account. Income and expenditure account for the year ending 31st March 18. In the books of क्लब का नाम नहीं दिया हुआ तो we'll take it as X club. Receipts and payment. This is inner column for adjustment, outer column, again inner column for adjustment and outer column. This is debit and this is a credit. This is expenditure. This is inner column amount, outer column amount. This is income, inner column amount,
outer column amount. Fine. Next, they want us to prepare the balance sheet. We have to prepare balance sheet and working note opening balance sheet. This is balance sheet of X Club as on 31st March 18. Right? This is a balance sheet. This is liabilities, inner column amount, outer column amount, and you have assets. Okay. Working notes, we have to prepare the opening balance sheet for the purpose of calculating a opening capital fund. Fine. We'll write down over here working notes. This will be balance sheet of X Club as on 31st March 17, or you can call it as 1st April 18. Same thing. Liabilities, amount, assets, and these are the different things you will have to prepare for solving the problem. Now, we'll start with the problem. First, we'll complete all the adjustment so that no adjustment should be left. Every adjustment, dual entries, I told you. First one what they have given. There are 500 members, each paying an annual subscription of ₹10. 3,500 being in areas for 1670. 3,500 rupees सब्सक्रिप्शन फीस आपको 16-17 में रिसीवेबल थी. दैट इज सब्सक्रिप्शन फीस इज इनकम फ्रॉम द मेंबर्स. तो 2016-17 में आपको सब्सक्रिप्शन फीस कितनी बकाया थी? 3,500. तो दैट इज इनकम रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम फॉर 1670. मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में आई हैव गिवन यू द एडजस्टमेंट एज रिगार्ड्स टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस. तो एज पर दैट पर्टिकुलर चार्ट ये अमाउंट 3,500 रुपए का पिछले साल रिसीवेबल था. तो ये पिछले साल के बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? इनकम रिसीवेबल विल गो वेयर? इट विल गो टू assets. It is what? It is nothing but an asset of previous year. यहाँ पे you have to write down subscription receivable. Subscription receivable is how much? 3,500. Subscription receivable. अब आगे क्या बोल रहा है? सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 3,500 रुपए पिछले साल थे.
वो ये साल आपको मिल जाने चाहिए। तो ये साल आपको रिसिप्शन पेमेंट में कितना अमाउंट मिला? 3000। 3500 रुपए बकाया था, उसमें से आपको 3000 रुपए ही मिले, यानी अभी भी 500 रुपीज रिसीव होना बाकी है टिल डेट 31 मार्च 18 तक। ये 500 रुपए आपको नहीं आए। अगेन दैट इज स्टिल रिसीवेबल। यू गोइंग टू राइट ओवर हियर सब्सक्रिप्शन receivable for 2016-17 500। 3500 रुपए आने बाकी थे, 3000 आपका रिसिप्ट्स में आ गए, 500 रुपए अभी भी आना बाकी है जो आपका यहाँ पे। Why I have written in the inner column? There may be certain adjustment to this. We are going to refer that. Further, what it says? During 16-17, subscription were paid in advance by 30 members for 17-18। पिछले साल 30 लोग ऐसे थे जिसने एडवांस में 10 सब्सक्रिप्शन फी पे की थी। सब्सक्रिप्शन फी पर मेंबर इज ₹10। तो 30 members has paid advance of 300 rupees। 30 multiplied by 10। पिछले साल 2016-17 में क्लब को 30 मेंबर से 300 रुपए एडवांस में आ गए थे, यानी 16-17 में 17-18 के पैसे आ गए थे। तो 16-17 की बैलेंस शीट में वो कहा आएगा? रिफर टू द चार्ट। इनकम रिसीव इन एडवांस। प्रीवियस ईयर में अगर एडवांस में रिसीव हुआ है तो कहां पे आएगा? फर्स्ट एडजस्टमेंट विल बी इनकम रिसीव इन एडवांस विल बी शोन अंडर लायबिलिटीज। सब्सक्रिप्शन, these were for 350 members. Sorry, this is yes. ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कितने लोगों ने एडवांस दिया था? वो बोल रहा है लास्ट ईयर 30 मेंबर्स, पर मेंबर 10। 16-17 में, दिस इज लास्ट ईयर बैलेंस शीट। लास्ट ईयर में 2017-18 के एडवांस में पैसे आ गए थे। कितने? ये 300 रुपीज 17-18 यानी करंट ईयर के थे, जो आपको पिछले साल कुछ मेंबर्स ने एडवांस में दे दिए थे, तो वो आपकी लायबिलिटी हुई। और पिछले साल कुछ मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था, वो आपका एसेट हुआ। पिछले साल जितने मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया था उसमें से कुछ मेंबर्स ने करंट ईयर में पैसा दे दिया, जो आपके रिसीप्ट साइड दिख रहा है 3000। 3500 में से 3000 यू हैव रिसीव अंडर रिसीप्ट साइड। 500 रुपीज स्टिल रिसीवेबल, दैट इज एन एसेट। अगेन यू हैव रिटर्न हो गए। जो एडवांस में आपको मिल गया था पैसा 300 रुपीज, जो पिछले साल 2016-17 में आपको 17-18 का एडवांस मिल गया था, बराबर। लेकिन ये पैसा करंट ईयर का है, वो कब मिला था आपको? लास्ट ईयर मिल गया था, बराबर। अब वो क्या बोल रहा है? करंट ईयर के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में अगर आप देखोगे तो यू कैन सी दैट के 2016-17 के 3000 which I have already done, 3500 रुपए आपको मिलने बाकी थे, उसमें से 3000 रुपए आपको रिसिप्ट मिल गए, 500 रुपए अभी भी बाकी है, वो मैंने यहाँ लिया है, बराबर। अब 17-18 में क्या था? कितना आया है अमाउंट? 4000 रुपए। करंट ईयर में आपको 4000 रुपीज आए, दैट इज योर इनकम, करंट ईयर इनकम बाय सब्सक्रिप्शन received 2017-18. How much? 4000. What is the information they have given? There are 500 members, each paying ₹10, यानी टोटल आपको 5000 रुपए रिसीव होना चाहिए था। 5000 में से करंट ईयर में आपको 4000 रुपए रिसीव हुए, 1000 रुपए अभी भी बाकी है। मगर एक इंफॉर्मेशन आपको क्या दी है?
कि 2016-17 में पिछले साल कुछ मेंबर्स ने आपको एडवांस दिया था 300, ये 300 रुपीज आपके करंट ईयर के, तो वो करंट ईयर में ऐड होंगे, प्लस अमाउंट रिसीव्ड इन 2016-17, दिस विल बी 300। ये 300 रुपीज पिछले साल मिल गए थे लेकिन वो करंट ईयर के थे, 4300। बट व्हाट इट सेज दैट देयर आर 500 मेंबर्स, यानी आपको 5000 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन मिले कितने, 4300, यानी करंट ईयर के 700 रुपए अभी भी आना बाकी है। दैट इज amount outstanding. How much? 700. Total will be 5000. 700 rupees is an amount receivable. That is income receivable. Is an asset will be shown here. राइट, 1200 रुपए टोटल आना बाकी। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या बोल रहा है, 18-19 के 1000 रुपए आ गए, यानी कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिसने आपको 18-19 यानी नेक्स्ट ईयर के अभी पेमेंट, अभी अमाउंट दे दिया, यानी दैट अमाउंट विच बिलोंग्स टू द नेक्स्ट ईयर बट यू हैव रिसीव्ड ड्यूरिंग 17-18, दैट इज अगेन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। 17-18 में 18-19 का पैसा आ गया, इनकम रिसीव इन एडवांस इज अगेन योर लायबिलिटी, विल बी शोन ओवर हियर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन से ईयर का एडवांस आया, नेक्स्ट ईयर का। हाउ मच, ₹1000। This is an advance you have received. Fine. अब आते नेक्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 17 वर 400। पिछले साल स्टेशनरी का स्टॉक 400 रुपए का बचा था, इज अ एसेट। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करंट ईयर में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 18 स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 500, दैट इज एसेट फॉर करंट ईयर। स्टॉक ऑफ, सॉरी दिस इज अ बैलेंस शीट, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, व्हाट इज द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ करंट ईयर, ₹500। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर में स्टेशनरी आपने कितने का परचेज किया है, 1000। इन द प्रीवियस लेक्चर आई हैव गिवन यू द एडजस्टमेंट फॉर स्टेशनरी। पिछले साल आपके पास स्टेशनरी का स्टॉक 400 रुपए का था, आपने करंट ईयर में 1000 रुपए का स्टेशनरी और परचेज किया, तो पिछले साल 400 रुपए का स्टॉक था, 1000 रुपए का आपने परचेज किया, टोटल हो गया आपके पास 1400 रुपए का स्टेशनरी। 500 रुपए का स्टेशनरी बच गया, यानी कंज्यूम कितना हुआ है, 900 रुपीज। वो कहां बताएंगे आप, एक्सपेंडिचर से। टू स्टेशनरी कंज्यूम, ओपनिंग स्टॉक, दैट इज एज ऑन 1 अप्रैल 17, स्टॉक कितने का था, 400, प्लस परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1000, टोटल हो गया 1400 का स्टेशनरी। कितने का बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक, ₹500 का स्टेशनरी आपके पास बैलेंस है। तो स्टेशनरी कंज्यूम कितना हुआ,
rupees 900. This is for stationery. Then you have at 31st March 18, rate and taxes were prepaid to the following 31st January. Rate and taxes. Rate and taxes as per payment is rupees 300. वो बोल रहा है आपने नेक्स्ट ईयर जनवरी तक ये पेमेंट दे दिया है पर मंथ. हाउ मच यू आर पेइंग 25 रुपीज पर मंथ. और वो बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर जनवरी तक आपने ये रेट एंड टैक्सेस पे कर दिया है. दैट इज प्रीपेड up to 31st January 19. How much? 250. एडवांस में आपने पे किया. एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर के बैलेंस शीट में. Prepaid rates and taxes. करंट ईयर में अमाउंट आ रहा है 50, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि ईयरली रेट एंड टैक्सेस आर 300. तो फिर यहाँ 50 रुपीज कैसा आ रहा है? तो इसका मीनिंग क्या है कि पिछले साल भी आपने 250 रुपीज एडवांस में पे किए होंगे. यानी जनवरी टू जनवरी चल रहा है. पिछले साल जनवरी में आपने 250 एडवांस पे किए होंगे पिछले साल जनवरी में. दैट मींस 31st जनवरी 2017. 31st जनवरी 2017 कौन से ईयर में आ रहा है? 16-17 में. आपने पिछले साल 250 रुपए पे किया होगा. वो 31st जनवरी 2017 को आपने 250 रुपए पे किए तो पिछले साल हो गया वो प्रीपेड एक्सपेंसेस. तो कहां आएगा? यहां पे प्रीपेड रेट्स एंड टैक्सेस. ये कौन से ईयर का था? 2017-18. हाउ मच? ये प्रीपेड रेट एंड टैक्सेस कब का है? 2018-19 नेक्स्ट ईयर का आपने अभी पे कर. तो ये पिछले साल जो आपने एडवांस में 250 पे किया था वो 250 करंट ईयर के जो यहाँ ऐड होंगे प्लस पेड इन 2016-17 प्लस 250. ऐसा हो गया ये ईयरली चार्जेस रुपीज 300. वो इंफॉर्मेशन आपको उन्होंने दी है कि रेट एंड टैक्सेस साल भर के 300 रुपए हो रहे. उसमें से वो बोल रहा है कि 250 रुपए आपने एडवांस में पे किए. 300 में से 250 गए, बचे 50. लेकिन वो एक और इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईयरली चार्जेस हो रहे हैं 300. तो जब आपने 300 में से 250 रुपए नेक्स्ट ईयर के अभी पे किए तो करंट ईयर के 50 हो रहे. मगर वो बोल रहा है कि आना चाहिए 300, आ रहे 50. इसका मीनिंग क्या है कि आप ये रेट एंड टैक्सेस जनवरी टू जनवरी पे कर रहे. आपने 31st जनवरी 2017 को भी 300 रुपीज पे किए होंगे. वो 300 में से 50 2017-18 के होंगे, सॉरी 16-17 के होंगे और 250 रुपीज 17-18 के होंगे जो मैंने यहाँ पे ऐड किया. व्हाट इट? आगे क्या बोल रहे हैं? A quarter charge for telephone is outstanding, the amount accrued being 300. टेलीफोन चार्जेस कितना दिया हुआ है आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट में? 1500. टेलीफोन चार्जेस they have given you 1500. What it says? Outstanding amount for the current year is rupees 300.
आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंसेस। एक क्वार्टर के 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस पेएबल, दैट इज अ लायबिलिटी। ये टोटल हो गए 1800। लेकिन एक इंफॉर्मेशन क्या दी उन्होंने कि पर क्वार्टर चार्जेस इज 300 रुपीज पर क्वार्टर, मीन्स 4 क्वार्टर के आपके 1200 रुपए होते। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में वही अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं जो करंट ईयर की है, तो यहाँ पे 1200 रुपए आना चाहिए, जबकि आ रहा है आंसर 1800 रुपए। इसका मीनिंग ये है कि 600 रुपीज आपने प्रीवियस ईयर के करंट ईयर में पे किए। दैट मीन्स 1500 रुपए आपने टोटल पे किए, 1500 में से 600 रुपए पिछले साल के पे करने बाकी थे प्रीवियस ईयर के, तो 1500 में से 600 रुपीज गए, तो बैलेंस विल बी 900 रुपीज। 300 रुपीज वो बोल रहा है करंट ईयर के पे करने बाकी है, तो 900 प्लस 300 विल बी रुपीज 1200, जो वो इंफॉर्मेशन में दे रहा है कि पर क्वार्टर चार्जेस इज 300, तो 300 मल्टीप्लाइड बाय 4 1200, इस तरीके से ये आएगा। तो 1500 रुपए में से 300 रुपए आपको बोल रहा है 300 रुपए और पे करना बाकी है, यानी हो गया 1800। ये टेलीफोन चार्जेस का सेकेंड इफेक्ट आई हैव टेकन अंडर लायबिलिटीज, बराबर। दिस इज फॉर 2017-18, बराबर। 1800 रुपए है, आना चाहिए 1200, तो 600 रुपए कहां के लेस अमाउंट पेड फॉर 16-17, दिस इज 600, यानी पिछले साल भी 600 रुपए देना बाकी थे, तो पिछले साल लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस 600। नाउ जस्ट कंपाइल एवरीथिंग। टेलीफोन चार्जेस 1500 रुपए आपके पेमेंट में दिख रहा है, उस 1500 रुपए में से 600 रुपए जो है वो पिछले साल के, 1500 में से 600 गए, बचे 900। वो बोल रहा है 300 रुपए करंट ईयर के पे करने बाकी है, 900 प्लस 300 टोटल 1200, जो यहाँ पे आपका आंसर है। 300 रुपीज का एक इफेक्ट यहाँ लिया, एक यहाँ लिया। 600 रुपीज का एक इफेक्ट यहाँ लिया, एक ओपनिंग बैलेंस शीट में। फाइन। नेक्स्ट इज sundry expenses. What it says, sundry expenses is 200. Sundry expenses 200 rupees they have given. Information क्या दी है? Sundry expenses accruing on 31st March 17 were 50. पिछले साल 50 रुपए देने बाकी थे। Outstanding sundry expenses last year, how much? 50. पिछले साल 50 देने बाकी थे, करंट ईयर में 200 रुपए दिए, तो विल अज्यूम 200 में से 50 रुपए प्रीवियस ईयर के आपने पे किए, लेस amount paid for 16-17 50 रुपीज, टोटल हो गया 150। करंट ईयर में क्या बोल रहा है वो, एंड एट 31st March 18 60 रुपीज पे करना बाकी है, यानी करंट ईयर में आउटस्टैंडिंग है 60 रुपीज, प्लस आउटस्टैंडिंग sundry expenses or amount payable, how much? 60, total 210. 60 rupees second adjustment, current year liability. Outstanding sundry expenses 50 रुपीज पिछले साल बकाया थे, 60 रुपीज करंट ईयर में बकाया है। करंट ईयर का अमाउंट कितना होगा? आउट ऑफ 200 50 बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर,
60 ऑफ करंट ईयर, पिछले साल का अमाउंट माइनस किया, करंट ईयर का अमाउंट ऐड किया 210. नेक्स्ट इज at 31st March 17 building stood in the books at 30,000, यानी लास्ट ईयर एसेट बिल्डिंग वैल्यू कितना था पिछले साल 30,000. इज एनी बिल्डिंग परचेज ड्यूरिंग करंट ईयर, पेमेंट में कुछ बिल्डिंग्स दिख रहा है क्या? देखिए नहीं दिख रहा है, बराबर, यानी कोई भी बिल्डिंग में चेंजेस नहीं है. सिर्फ क्या बोल रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट 10%, बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. एक्सपेंडिचर टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10% on 30,000 will be 3,000. First effect. Second effect, building 3,000 inner column, 30,000 less depreciation current year, outer column 27,000. Building. Next is face value of security on 12% security on 31st March 17 was 10,000 which were purchased at that date for 15,000. पिछले साल 31st मार्च 17 को यानी लास्ट डेट पे आपने 10,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 15,000 रुपए में परचेज किया, यानी एसेट 12% सिक्योरिटीज, face value 10,000. We have purchased for 15,000. बराबर. आगे क्या बोल रहा है? Additional security worth ₹5,000 are purchased at par on 31st March 18. करंट ईयर में आपने परचेज किया है और 5,000 रुपए का, 15,000 के तो ऑलरेडी थे आपके पास और 5,000 के यू हैव परचेज. एसेट 12% सिक्योरिटी ओल्ड कितनी थी 15,000 प्लस एडिशन और परचेज किया है 5,000 रुपए, टोटल हो गए 20,000. अब इस पे 12% इंटरेस्ट मिलना चाहिए. इंटरेस्ट कभी भी फेस वैल्यू पे मिलेगा. 10,000 और करंट ईयर में 5,000 का परचेज किया, लेकिन ये जो एडिशन हुआ है ये 31st मार्च 18 को हुआ है, तो इस पे आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. तो 10,000 रुपीज जो पूरा साल आपके पास थे उस पे 12%, 10,000 रुपीज पे 12% विल बी 1,200. दैट इज योर इनकम बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. रिसिप्ट्स में कितना दिया हुआ है, कितना इंटरेस्ट आपको मिला 1,000. एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से आपको मिलना चाहिए 1,200. दैट मीन्स इंटरेस्ट रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग अमाउंट इनकम कितना मिलना बाकी है 1,200. दिस हाउ आई हैव कैलकुलेटेड 12% ऑन 10,000. ये 5,000 पे कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि वो आपने लास्ट डेट पे परचेज किया है. 1,200. 200 रुपए आपकी इनकम रिसीवेबल है, दैट इज एन एसेट. इंटरेस्ट रिसीवेबल. सेकेंड इफेक्ट, all the adjustment finish. Now come to your receipts and payment account. Receipts and payment में पहला आइटम है आपका ओपनिंग कैश, यानी लास्ट ईयर का कैश है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जाएगा. कैश बैलेंस कितना था पिछले साल 2,000. 2,000.
2000 रुपीज। करंट ईयर में कैश बैलेंस कितना है? 3000 रुपीज, दैट इज करंट ईयर कैश बैलेंस। नाउ सब्सक्रिप्शन 3000 रुपीज पिछले साल का आपको करंट ईयर में मिला है, जो आपने ऑलरेडी दे दिया है। 3500 रुपए बकाया था, 3000 रुपए आपको मिल गए, 500 रुपए अभी भी बकाया है। 17-18 के 4000 रुपए आपको मिले, 50 मेंबर के 5000 मिलने चाहिए थे, लेकिन 4000 रुपए मिले, जो यहाँ पे आपने लिया है। 300 रुपए आपको पिछले साल ही मिल गए थे, 4300, 700 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। 300 रुपीज का फर्स्ट इफेक्ट अपन ने कहा लिया। 300 रुपीज पिछले साल आपको मिले थे, ये ऑलरेडी पिछले साल के रिसिप्ट में आया होगा, बराबर। यहाँ पे अपन पिछले साल का रिसिप्शन पेमेंट नहीं बना रहे। 700 रुपए मिलना बाकी है। एक यहाँ पे आया आपका 700 रुपीज और एक यहाँ पे आया एसेट्स के अंदर, ये 700 रुपीज। फाइन, वी हैव कंप्लीटेड 4000। नेक्स्ट है आपका 1000 रुपए। ये 18-19 मैंने आपको बोला कि ये 18-19 लेना है। 18-19 के 1000 रुपए आपको एडवांस में मिल गए, वो आपकी हो गई लायबिलिटी, जो मैंने यहाँ पे ली 1000 रुपीज। राइट, तो यहाँ पे we have taken this adjustment and this one, उसी तरह यहाँ पे। उसके बाद you have प्रॉफिट ऑन स्पोर्ट्स। आपको स्पोर्ट्स पे 3000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, दैट इज योर इनकम। हैव यू टेकन दैट? नो, वी विल टेक, दैट इज योर रेवेन्यू रिसीप्ट। So we have taken this 3000. Then there is an interest on 12% securities 1000. आपको मिलना चाहिए था 1200 रुपए, आपको 1000 ही मिले। 200 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, which we have taken over here. ये 200 रुपए आपको इनकम रिसीवेबल है। 1 here you have taken and 1 here. उसके बाद पेमेंट साइड, सैलरीज आपने 3000 रुपीज की पे की। हैव यू टेकन सैलरीज? Was there any salaries? No, we'll take that. Salaries आपने कितने का पे किया? ₹3000. So you have paid a salary of ₹3000. Then you have stationery of 1000. Stationery का adjustment we have taken. Stationery consume you have. स्टेशनरी आपके पास 400 रुपए का स्टेशनरी था, 1000 रुपए का आपने परचेज किया, टोटल हो गया 1400। 500 रुपीज का बकाया है 900। पिछले साल जो स्टेशनरी का स्टॉक था वो यहाँ लिया, करंट ईयर का जो स्टेशनरी का स्टॉक है वो आपने यहाँ पे लिया। फाइन, नेक्स्ट यू हैव रेट एंड टैक्सेस 300 रुपीज। वी हैव टेकन दैट 300। रेट एंड टैक्सेस 300। 250 रुपए पिछले साल ही आपने करंट ईयर का पे किया था, वो यहाँ ऐड किया। करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर का पे किया, वो माइनस किया। करंट ईयर जो आपने 250 रुपए एडवांस पे किए थे वो यहाँ लिए। करंट ईयर में जो एडवांस पे किया था वो आपने यहाँ पे लिया। उसके बाद है टेलीफोन चार्जेस 1500। टेलीफोन चार्जेस 1500 रुपए, उसमें से 600 रुपए आपने पिछले साल के पे किए, जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, दैट वाज अ हिडन एडजस्टमेंट। और करंट ईयर में 300 रुपीज आउटस्टैंडिंग है, जो यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे उसका सेकेंड इफेक्ट यू हैव टेकन। फाइन, देन 12% सिक्योरिटीज यू हैव परचेज ड्यूरिंग द करंट ईयर। आपके पास ऑलरेडी 15,000 की सिक्योरिटीज थी और आपने करंट ईयर में और 5,000 की परचेज की, टोटल सिक्योरिटीज हो गई आपके पास 20,000। फाइन,
Then you have sundry expenses of 200. सन्ड्री एक्सपेंसेस 200, उसमें वो बोल रहा है पिछले साल के 50 रुपए आपने पे किए जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे, जो आपकी लायबिलिटी है, और करंट ईयर में 60 रुपए आपको पे करना बाकी है जो आपकी करंट ईयर की लायबिलिटी है। फाइन। उसके अलावा बिल्डिंग इंफॉर्मेशन, बिल्डिंग आपके पास पुरानी है, आपने करंट ईयर में परचेज नहीं की इसलिए वो पेमेंट में नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग है 30,000 रुपीज की आपके पास थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन यू हैव चार्ज, नेट अमाउंट इज 27,000 over here. This is what you have. So everything we have taken, we have covered all the adjustment, we have covered all the amount that has been given under receipts and payment. Now we will calculate the surplus or deficit. What is the total on credit side? You have 5, 6, 7 and 9, 9,200 is a credit total. Debit का total देखते, 900 plus 300, 1200 plus 1200, 2400, 2400 and 6,000 will be 8,400. 8,400 plus 210. 8,610. You have 8,610 debit का total. So credit is more than debit, so there will be a surplus. How much? This is 590. 590. And what is the total you have? 9,200. Fine. Now here surplus will be added to opening capital fund. और आपको ओपनिंग कैपिटल फंड कहां से मिलेगा? यहां से मिलेगा। फाइन। ओपनिंग कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर, what is the balancing figure you have? What is the total of credit side you have? 3,500, 3,900, 4,150, 34,150, 44, 49, 150, 51, 150. Just check the total. Is it correct? 51, 150 मेरा टोटल है। And liabilities का टोटल is 300, 600, 900 plus 950, तो 51, 150 minus 950, $50,200 बराबर। ये 50,200 यहां पे आएगा और सरप्लस कितना है आपके पास? 590। दिस इज 50,790। okay? Now we will try to tally this. See what is the total. $50, $51, $52,
52 150 मेरा टोटल आ रहा है। यहाँ का टोटल देखिए 27 30 40 50 50 ये है 1200 1700 52 ये टोटल हो गया आपका टैली पे। So this is how you have to solve the problem. Just copy this. Just go through the problem. And if you have any doubt, please ask. Bye everyone.